हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम एटम्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द n is equal to 3 level is 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, 7.3 into 10 to the power 5 meter per second, 1.1 into 10 to the power 6 meter per second, 2.4 into 10 to the power 5 meter per second. Question number 2, the radius of innermost orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. The radius of the n is equal to 3 orbit is 0.53 angstrom, 1.53 angstrom, 4.77 angstrom, 1.06 angstrom. Question number 3, a difference of 2.3 electron volt separates two energy levels in an atom. The frequency of radiation emitted when the atom make a transition from upper level to the lower level is 5.6 into 10 to the power 14, 5.6 into 10 to the power 15, 3.6 into 10 to the power 11, 2.4 into 10 to the power 15 hertz. Question number 4, the first Bohr's radius and ground state energy of neonic hydrogen atom will be respectively charge on neonic hydrogen atom is E and mass 207 Me. 0.53 angstrom minus 13.6 electron volt, 2.56 into 10 to the power minus 13 meter, minus 2.8 kilo electron volt, 1.06 angstrom and minus 2.8 kilo electron volt, 5.12 angstrom and minus 13.6 electron volt. Solution: the speed of the electron in hydrogen atom in the n is equal to 3 level is 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, 7.3 into 10 to the power 5 meter per second, 1.1 into 10 to the power 6 meter per second, 2.4 into 10 to the power 5 meter per second. Hydrogen, this is nucleus, ground state orbit n is equal to 1 and n is equal to 3 orbit. This n is equal to 3, n is equal to 1. जो ग्राउंड स्टेट में स्पीड होती है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सपोज n इज इक्वल टू 3 पर स्पीड है v, तो हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन v एंड n. यहाँ पर एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है E और इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन दिस. इस पर E नेगेटिव, यहाँ पर E पॉजिटिव. तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट m v स्क्वायर बाई r पर ये रेडियस r है इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर. एक r से कार क्रॉस हो गया, तो mv स्क्वायर
is equal to E square by 4 pi epsilon 0 r. Equation number 1. According to the Bohr's model, angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. n हमें v और n में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. r इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम वी. इक्वेशन नंबर 2. r की वैल्यू ये जो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में. एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0. आर की वैल्यू पुट कर देंगे एन एच बाई 2 पाई एम वी. और ई स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन एच. एम वी स्क्वायर, एम से एम क्रॉस हो गया, वी से वी क्रॉस हो गया, तो वी इज इक्वल टू, और 2 पाई से 4 पाई 2 हो गया, तो ये हो जाता है ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 एच एन एच. और 1 बाई एन ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 एच. दिस इज कांस्टेंट. तो V is inversely proportional to n. Number of principal quantum number. तो V की वैल्यू होगी, दिस इज, अगर हम V0 फॉर n या V1 से लें, ये V1 ही लिखें इसको, V1, और दिस इज n इज इक्वल टू 1. तो V बाई V0 विल बी इक्वल टू n0 बाई n, और 1 बाई 3. V इज इक्वल टू V0 बाई 3, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, 0.73 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और 7.3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. तो जो स्पीड होगी वो होगी 7.3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. बी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 2. The radius of the innermost orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. The radius of the n is equal to 3 orbit is 0.53 angstrom, 1.53 angstrom, 4.77 angstrom, 1.06 angstrom. सपोज इसको हम A0 से डिनोट करें, और इसको मान लिया रेडियस, दिस रेडियस इज ए, और an लिखें हम. तो an की वैल्यू होती है an इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड. जेड इज एटॉमिक नंबर इंटू A0. n is 3 by square by z is 1 for hydrogen, और A0 is angstrom, 4.77 angstrom. तो जो A3 होगा n is equal to 3 पर 4.77 angstrom. C is correct option. Question number 3. The difference of
2.3 electron volt separates two energy levels in an atom. The frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from upper level to the lower level is 5.6 into 10 to the power 14, 5.6 into 10 to the power 15, 3.6 into 10 to the power 11, 2.4 into 10 to the power 15. जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है डेल्टा ई is 2.3. Delta E is equal to 2.3 electron volt or 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. अगर frequency of radiation is nu, H nu is delta E or nu is equal to delta E by H. वैल्यूज पुट कर दें 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. 2.3 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15. थ्री पॉइंट सिक्स एट बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15. इसका डेसिमल हटा दें या 100 और ऊपर 10. 368 by 66 into 10 to the power 14 हर्ट्ज और 2 से डिवाइड करें 33184 184 by 33 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. 184 335 916 approximately 5.6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी होगी 5.6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. This A is correct option. Question number 4. The first Bohr radius and the ground state energy of neonic hydrogen atom will be respectively charge on the neonic hydrogen atom is E and mass is 207 me. 0.53 angstrom minus 13.6 electron volt, 2.56 into 10 to the power minus 13 meter and minus 2.8 kilo electron volt, 1.06 angstrom and 0.28 kilo electron volt, 5.12 angstrom and minus 13.6 electron volt. Radius सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करें नियोनिक हाइड्रोजन. यहाँ पर मास जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो me. चार्ज सेम नियोनिक में भी. तो मास और रेडियस का रिलेशन हम कैलकुलेट करना होगा. क्या रिलेशन होता है? जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है A0 इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. This is nucleus of neonic and this is radius, suppose R.
मास, जो ऑर्बिट में मास रोटेट कर रहा है उसका मास m, स्पीड v, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पर चार्जेस हैं ई स्क्वायर बाई 4πε0 r स्क्वायर, r से r क्रॉस हो गया, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4πε0 r, और mr v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4πε0. Equation number 1. By Bohr's model, mvr angular momentum is equal to, orbit is first n is equal to 1 nh by 2 pi, और for 1 के लिए हम लिख सकते हैं h by 2 pi. हमें रिलेशन निकालना है m और r में, तो v को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट की, v इज इक्वल टू h बाई 2 पाई एम आर. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 की जो v की वैल्यू है ये पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो एम आर इंटू वी की वैल्यू है h बाई 2 पाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0. एम आर इंटू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0. एक एम से एक एम क्रॉस हो जाएगा, आर से आर एक आर क्रॉस हो जाएगा, तो एम आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर. दिस होल इज ए कांस्टेंट, तो एम आर इज कांस्टेंट और R is inversely proportional to M. R by A0 will be equal to ME by 207 ME. तो R is equal to ME से ME क्रॉस हो गया 1 बाई 207 इंटू A0, और A0 की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम और 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया तो 13 हो जाएगा, 207 मीटर. तो 530 को डिवाइड कर दिया 207, 2 4 14 6 1 1 0 5 5 2 1 0 6 2.56 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर. जो रेडियस होगी वो होगी 2.56 इंटू 10 टू द पावर -13. अब एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर. तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड अभी हमने देखा है कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M. हैंस
E is directly proportional to m. एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम E H से अगर डिनोट करें तो ये होगा -13.6 eV, और नियोन में अगर En से डिनोट करें, ENU से, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ENU बाई EH इज इक्वल टू 207 Me बाई Me, Me से Me क्रॉस हो गया, ENU इज इक्वल टू 207 EH, 207 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 207 25182 माइनस का 2815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -2.8152 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अप्रोक्सीमेटली 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस होगी 2.56 इंटू 10⁻13 और एनर्जी -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन।